Good morning, students. How are you all? I am feeling very excited because I would like to inform you that we have completed your syllabus for periodic test 1. Okay, so as your syllabus is already being completed and we still have some time, so the best thing to do is to revise whatever we have learned so far. Okay, so as you all know that we are going to start revision from today, and we are going to revise first lesson of your book Beehive, which is the fun they had. Okay, so the fun they had is very interesting story. I hope you remember when it was told to you last time. If you haven't, then don't worry, I am going to revise each and everything clearly. Okay, so let's start. So the fun they had by Isaac Asimov is science fiction. It tells the story of two young children named Tommy and Margie who lived in the year 2157, where children get education through computers at their home. Okay, so who is the author of this story? This story is written by Sir Isaac Asimov. Okay, and this story is a science fiction. This is a science fiction means imaginary story which is related to science, mostly science based. Okay, so in this story there are two main characters who are Tommy and Margie, and they are living in future. So this is kind of a time travel story. This story is happening in future, which is 2157. So you can calculate how many years from today. We are in 2020 and they are in 2157. Okay, so their children are getting education through computers at home. Okay, and there are not teachers like us. Actually, computer or robots used to teach them. So one day what happens that the boy Tommy got a printed book. Printed book means the book which we all have. हमारे पास जैसी book है वो printed book है. But in future वैसी book कोई भी use नहीं करता. Everybody use book in their laptop, computer. They have digital form of books. कोई भी hard copy लेके future में नहीं चलेगा. So when they got this book, जब उन्हें एक असली की किताब मिलती है, so they are very excited to know about that book. Okay. So the fun they had lesson यहाँ से शुरू होता है. Summary. Let's see what is the summary. It is the year 2157. Margie makes a diary entry which reveals that Tommy has come across a book printed on paper. The pages of the book have turned yellow and wrinkled, which proves that it existed centuries ago. So they are in year 2157 and Margie is making a diary entry. So Margie diary entry कर रही है and probably she is doing on laptop or PC or computer. Okay. So she says that Tommy has come across a printed book. Tommy को एक printed book मिली है and the pages of that book are yellowish in color and wrinkled. So जिससे ये पता चल रहा है कि the book is very very old. Book बहुत ज़्यादा पुरानी है कि पेज की कंडीशन से ये पता चल रहा है. The book is peculiar to the sense that it had the same words on it and it had when they read it for the first time. They were not moving like that on a computer or television screen. So यहाँ पे she's saying, Margie is saying that the book is same as it was centuries before. Book तो अभी भी वैसी है, words जो book में लिखे हुए हैं वो तो अभी भी वैसे हैं. So the words in this book is stationary. बट द बुक विच वी हैव, हमारे पास जो बुक है, हमारे पास तो लैपटॉप में या कंप्यूटर स्क्रीन पे बुक है, उसके वर्ड्स मूव करते रहते हैं. फॉर एग्जांपल आप न्यूज़ देखते होगे, सो देयर हेडलाइंस आर मूविंग. सो इन द सेम वे ये लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं. दे वेयर द वर्ड्स मूव ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे वर्ड्स चलते रहते हैं. सो ये देख के उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि ये कैसी बुक है, इसमें तो वर्ड्स हिल ही नहीं रहे. Tommy calls it waste because once the book is read, it is of no use. Their television screen has had a million books on it and one cannot throw it away.
सो टॉमी कहता है कि दिस बुक इज़ वेस्ट, ये बुक का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वंस यू कंप्लीट दिस बुक देन यू हैव टू जस्ट थ्रो इट अवे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, एक बार आपने पढ़ लिया, सो व्हाट विल यू डू। बट आवर कंप्यूटर इज़ नॉट लाइक दिस। हमारे कंप्यूटर और टेलीविज़न में तो हज़ारों मूवी, हज़ारों स्टोरीज हैं, बट स्टिल वी डू नॉट थ्रो इट। There are many books in their laptop and they can reread it. They can means उन्हें तो फेंकना तो पड़ेगा नहीं ना अपने लैपटॉप को, they can use their laptop again. So Margie is of the same opinion, but she is curious to know what is the book about. Tommy tells that it is about school. She hated school, but now she hated it more than ever because her mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. Her mother sends for the county inspector, who is a round little man. Okay? सो मार्जी भी बोलती है येस दिस बुक इज़ यूजलेस, इस बुक का कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ वेस्ट ऑफ पेपर, इट इज़ वेस्ट ऑफ ट्री। बट मार्जी इज़ एक्साइटेड टू नो व्हाट इज़ देयर इन द बुक। सो मार्जी पूछती है टॉमी से, लाइक टॉमी इस बुक में क्या है। सो टॉमी सेज दैट दिस बुक इज़ अबाउट स्कूल। सो इतना सुन के तो मार्जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका मूड ख़राब हो जाता है। वाई? बिकॉज शी हेटेड स्कूल। मार्जी डजेंट लाइक स्कूल एट ऑल, और अब तो वो स्कूल से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी है बिकॉज ऑफ हर मैकेनिकल टीचर। सो मार्जी के पास हमारी जैसा टीचर नहीं है, इट्स नॉट लाइक योर टीचर, शी हैज़ अ मैकेनिकल टीचर, उसका टीचर एक रोबोट है। ओके, एंड शी इज़ वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द रोबोट टीचर। वो रोबोट से बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वो ज्योग्राफी पे टेस्ट लिए जा रहा है और मार्जी का टेस्ट ख़राब से ख़राब होते ही जा रहा है। सो मार्जी की मम्मी ने एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, मे बी जो रिपेयरिंग करने वाला है इंस्पेक्टर, जो रोबोट को सही कर सके। सो वो रोबोट को बनाने के लिए एक इंस्पेक्टर आते हैं, जो कि ही वॉज लाइक अ राउंड लिटिल मैन। राउंड लिटिल मैन मीन्स वो थोड़े मोटे थे, हेल्दी थे, एंड हिज हाइट इज ऑल्सो लेस, उनकी हाइट भी कम थी। ही टेक्स द टेलीविजन teacher apart and sets it right within an hour, which only increases Margie's disappointment. He tells her mother that it was not Margie's fault, but the geography sector of the mechanical teacher was geared a little too quick, and he has slowed that to an average 10-year level. He assures Margie and her mother that there will be no problem henceforth. So, काउंटी इंस्पेक्टर लैपटॉप और उनका जो भी कंप्यूटर है, जो भी टीचर है, उसे बनाने के लिए ले जाते हैं और उसे बना के 1 घंटे में ही वापस ले आते हैं। सो मार्जी और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वाई? क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि कंप्यूटर उसका ख़राब हो गया एंड नाउ दैट टीचर विल नॉट कम। मैकेनिकल टीचर अब दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, मुझे कोई टेस्ट नहीं देना होगा। बट विद इन 1 hour द काउंटी इंस्पेक्टर रिपेयर्स दैट, और काउंटी इंस्पेक्टर मम्मी से बताते हैं, मार्ची की मम्मी से कहते हैं, ही सेज दैट दिस कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर वॉज प्रोग्राम्ड फॉर लिटिल हायर स्टैंडर्ड। वो थोड़ा स्पीड उसकी ज़्यादा थी, अब मैंने उसे सेट कर दिया है, वो एक 9-10 साल की बच्ची के लिए बहुत ही अच्छा है। So he assures Margie and her mother that he will not be problem. There will be no problem. So कहता है कि मैम I have repaired this mechanical teacher now. मैंने उसका लेवल मार्ची के हिसाब से सेट किया है, इसमें मार्ची की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मार्ची अपने जगह ठीक थी, बट अब मैंने सेट कर दिया, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो मार्जी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वाई? बिकॉज मार्जी थॉट दैट मेरा मैकेनिकल टीचर बेकार हो गया, मुझे फुर्सत मिल जाएगी। Margie is curious to know about the school that existed in the past. Tommy tells her that it is not their kind of school, that is old kind of school that had centuries ago. The students had a human teacher who taught them and gave them homework and also asked them questions. Margie argues that man cannot be smart enough. Okay, सो मार्जी इज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी क्यूरियस, बहुत ज़्यादा उसे जानने की इच्छा थी दैट व्हाट इज़ देयर इन द स्कूल ऑफ द पास्ट। पहले के स्कूल किस तरीके के होते थे।
सो पहले के स्कूल मीन्स दे आर लिविंग 2157 आई थिंक. सो उससे पहले के स्कूल कैसे थे? हाउ वॉज द स्कूल विच आर बिफोर? सो टॉमी बताता है, टॉमी सेज दैट देयर स्कूल आर नॉट लाइक आर. उनके स्कूल बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे. एंड द टीचर, ह्यूमन टीचर, उन्हें एक ह्यूमन टीचर पढ़ाया करता था, उन्हें होमवर्क भी देता था, क्वेश्चंस भी करता था. बट मार्जी कहती है ह्यूमन टीचर, एक ह्यूमन कैसे किसी बच्चों को पढ़ा सकता है? ह्यूमन के पास तो बहुत कम नॉलेज होती है. आई डोंट थिंक ह्यूमन टीचर कैन बी एज गुड एज आवर मैकेनिकल टीचर. Tommy further tells her that the teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. The kids of the same age learned the same thing. Now it is Margie's school time. She goes into the school room, which is right next to her bedroom, and the mechanical teacher is on waiting for her. She puts her homework in the slot with a sigh. सो जिम मार्जी को बताता है दैट मार्जी उनके स्कूल तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हुआ करते थे. वहाँ एक टीचर होता था जो उनको क्वेश्चंस देता था, क्वेश्चंस पूछता था, होमवर्क देता था. सो मार्जी कहती है कि कैसे एक ह्यूमन पढ़ा सकता है? ह्यूमन तो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसे याद नहीं हो सकती. तो हाउ कैन अ ह्यूमन टीच? लाइक हमारा एक मैकेनिकल टीचर हमें पढ़ाता है, वैसा एक ह्यूमन कैसे पढ़ा पाएगा? ओके. सो टॉमी बताता है कि दे ऑल गो, उनके घर पे कोई पढ़ाने नहीं आता था, वो सब सारे बच्चे एक स्कूल में जाया करते थे, अ प्लेस. सो दे ऑल गो इन अ स्कूल जहाँ पे एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी. हर क्लास के बच्चे, अलग अलग क्लास के बच्चे होते थे और अपने साथ बैठते थे अपने लेवल पे. ओके. सो मार्जी का स्कूल जो है वो पूरी तरीके से अलग है. अभी मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया है और उसका स्कूल रूम जस्ट उसके बेडरूम के बगल में है. सो एट दैट टाइम इन दोज ईयर्स बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनके रूम में ही एक कंप्यूटर टीचर होता था जो उन्हें पढ़ाता था. सो अभी मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया, वो अपने स्कूल रूम में चली गई जो कि उसके बेडरूम के जस्ट बगल में है. एंड देन शी पुट्स हर होमवर्क, वो होमवर्क देती है अपने मैकेनिकल टीचर को. एंड शी टेक्स अ डीप ब्रेथ लाइक sigh. She is still thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. Those schools were far better than the schools of today because they offered great fun to the students. So मार्जी अभी भी पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है और वो सोच रही है कि मेरे दादा की दादा का जो स्कूल था, मेरे दादा जब बहुत ज़्यादा, दादा की दादा, ग्रैंड फादर्स फादर, व्हेन ही वाज अ किड ही यूज्ड टू गो इन दोज स्कूल्स. वो एक कितना अच्छा स्कूल होता था, सारे नेबर्स खुद के बच्चे वहाँ पे जाते थे. दे यूज्ड टू लाफ, दे यूज्ड टू शाउट एंड दे सिट टुगेदर. उन्हें कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा, वो एक साथ बैठते थे पूरे दिन एंड घर भी वो साथ में आते थे. आज के स्कूल तो बिल्कुल ही अलग है, हम अकेले पढ़ते हैं. देयर इज़ नो इंटरेक्शन, देयर इज़ नो फन. सो हियर द स्टोरी एंड्स, यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है. सो द मॉरल इज हियर दैट लाइक अभी आप यू कैन कंपेयर कि हम लोग आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जैसे कि अभी मैं ये वीडियो बना के आपको भेजूँगा. दिस इज़ नॉट एज मच इंटरेस्टिंग एज नॉर्मल जो स्कूल लाइफ होती है. ओके. So our present school teaching system is better than that will be in future. ऐसा उस बच्ची को लगता है. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए. बट आई ऑल्सो थिंक दैट ऐसा ऑनलाइन से तो बेटर है. आई ऑल्सो डू नॉट लाइक टॉकिंग लाइक दिस ऑन फोन इन हैंड. लाइव पढ़ाने में, लाइव बात करने में, इट हैज़ अनदर लेवल ऑफ एडवेंचर एंड फील. So this is it in today's class. आज की क्लास ख़त्म होती है and I hope you all have understood. The chapter ends here. I will give some exercises, आप उसे कर सकती हो and prepare for examinations. Watch all the videos again and again. Ask me question if you have. So fine. Take care of yourself. Bye.